Hello dear students, today most important questions for roots of complex numbers. See question number 13th. If 1 alpha, alpha square, alpha cube, alpha to the power 4 are the roots of x to the power 5 minus 1 equals 0, find them and show that 1 minus alpha multiplied by 1 minus alpha square multiplied by 1 minus alpha cube multiplied by 1 minus alpha to the power 4 equals 5. Or this question can be asked also in terms of so that the roots of x raised to 5 minus 1 equal to 0 can be written as 1 alpha, alpha square, alpha cube, alpha to the power 4. Hence, so that 1 minus alpha into 1 minus alpha square into 1 minus alpha cube into 1 minus alpha to the power 4 equal to 5. So, both the questions have the same meaning, but in your exam, they can ask in any way, either in first or in second. So, now see the proof of this question, which is very interesting and important proof of the question number 13. See, proof of question number 13. Since x to the power 5 minus 1 equal to 0, it is given, not modified, it is given equation in your question x raised to 5 minus 1 equals 0. What does it mean? This means x raised to 5 equals 1 and 1 can be written in the complex number form or complex form, that is De Moivre's formula cos 0 plus I sin 0, because cos 0 is 1 and sin 0 is 0. So here it is 1 plus I into 0, that is 1 plus 0 becomes 1. So 1 can be written as in terms of complex number form, so cos 0 plus I sin 0. That is its general term x to the power 5 can be written as cos 2k pi plus I sin 2k pi. It is multiple of 2 pi. Here it is also multiple of 2 pi. So its value will be 1. Here k is a constant. So x raised to 5 can be written as cos 2k pi plus I sin 2k pi. जैसा कि हम लोग मेनी क्वेश्चंस में लिखते भी हैं और पहले भी इसका फार्मूला आ चुका है, तो कोई भी स्टूडेंट को अगर यहाँ पर कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन इन द कमिंग वीडियोज. If you are my regular viewer, so you have no problem because already uploaded in this form or in this format. Therefore, it is value of x raised to 5. So cos 2k pi plus I sin 2k pi, taking fifth root on both sides. This means x equals cos 2k pi plus I sin 2k pi whole raised to 1 upon 5. When x raised to 5 equal to cos 2k pi plus I sin 2k pi, therefore x equals cos 2k pi plus I sin 2k pi whole raised to 1 upon 5. Or fifth root, you can say anyway. Now applying here De Moivre's theorem, cos 2k pi plus I sin 2k pi whole raised to 1 upon 5 means it is n. जैसा कि मैंने De Moivre's theorem पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है और ऑलरेडी इसके बारे में वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, फार्मूला एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट De Moivre's theorem and related formula, you should refer my previous videos related to the complex numbers. Now, using De Moivre's theorem, we get here cos of 2k pi upon 5 plus I sin 2k pi upon 5. This is the De Moivre's theorem. Where k is constant, so using here raised to 5 means 5 roots are there. So using put, or you can say put k equal to 0, 1, 2, 3, 4. जैसे हमारे पास अगर x रेज टू 5 है या 5 रूट्स हैं तो हमें 0 to 4 तक नंबर सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए. तो पुट k इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4. Therefore, the 5 roots are, अभी 5 roots में फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? The 5 roots are put k equal to 0 here means we should consider the first root as x0. So x0 becomes cos 0 plus I sin 0. We put value of k here.
if we put k equal to 0, so this is 2 into 0 into pi upon 5, that is cos of 0, plus I sin 2 into 0 into pi upon 5, that is sin of 0. So cos 0 plus I sin 0, that is 1 plus 0 becomes 1. तो ये रहा हमारा फर्स्ट रूट x0 equal to 1. Now put k equal to 1, second value of k. So we get here x1 means second root. x1 equal to cos of, अब देखो यहाँ पर we put k equal to 1, so 2 into 1 into pi upon 5, that is cos of 2 pi upon 5, plus I sin 2 into 1 into pi upon 5, that is 2 pi upon 5. So you can say x1 equals cos 2 pi upon 5 plus I sin 2 pi upon 5, and let it be alpha. So do not let, because it is already given in the question, second root is alpha. Here 1, this is first root we got, and here it is second, that is alpha, got here. So x1 becomes alpha. Now put k equal to 2, this value, second value here, k equal to 2, k equal to 2. So here it is 2 into 2 into pi upon 5, that is 4 pi upon 5. Also here 2 into 2 into pi upon 5, that is 4 pi upon 5. So x2 can be written as cos of 4 pi upon 5 plus I sin 4 pi upon 5, which is alpha square. This is second root. Now put k equal to 3. Put k equal to 3, we get here 2 into 3 into pi upon 5, that is cos of 6 pi upon 5 plus I sin 2 into 3 into pi upon 5, that is sine of 6 pi upon 5, and it is alpha cube, which is fourth root of the given equation. Now we put here k equal to 4, that is cos of 2 into 4 into pi upon 5 becomes cos 8 pi upon 5 plus I sin 2 into 4 into pi upon 5, that is 8 pi upon 5, means x4 equal to cos 8 pi upon 5 plus I sin 8 pi upon 5 equals alpha raised to 4. तो इस तरह से हम लोगों ने 5 रूट्स यहाँ पर अचीव कर लिया हियर x0, x1, x2, x3, x4 आर 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड अल्फा टू द पावर 4. तो ये तो हमने पता लगा लिया कि देयर आर 5 रूट्स, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड अल्फा टू द पावर 4, बट वी वांट टू प्रूव द रिलेशन between them and other results. So we can say the roots are 1 alpha, alpha square, alpha cube and alpha to the power 4. Now x raised to 5 minus 1 can be expressed as x minus 1. This is the first root. So x minus 1 multiplied by x minus alpha multiplied by x minus alpha square multiplied by x minus alpha cube multiplied by x minus alpha to the power 4. There are 5 roots. Here 1 alpha, alpha square, alpha cube, alpha raised to 4. Multiplying all in terms of with x minus 1, x minus alpha square, x minus alpha cube, x minus alpha raised to 4. Taking x minus 1 on the left hand side, so we get x to the power 5 minus 1 upon x minus 1 equals x minus alpha square into x minus alpha cube into x minus alpha raised to 4. Now after expansion we get here x raised to, if we divide x raised to 5 minus 1 upon x minus 1 dividing by general division, or you can say by long division method, find the quotient. So we get the quotients as x raised to 4 plus x cube plus x cube, sorry, x raised to 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. These are the quotients after dividing x raised to 5 minus 1 upon x minus 1. Means after dividing x raised to 5 minus 1 by x minus 1. So we get the quotient x raised to 4 plus x cube plus x raised square plus x plus 1, which is equal to x minus alpha into x minus alpha square into x minus alpha cube into x minus alpha to the power 4. Now put x equal to 1 on both sides. If it is an equation, so we can put any value of x on both sides, so equation will be balanced, no effect on the question. But according to the proof, we want to prove that x minus alpha into x minus alpha square into x minus alpha cube into x minus alpha raised to 4 equals 5. So put x equal to 1 on both sides, we get here 1 raised to 4, that is 1, 1 cube 1, 1 square is 1, and 1 plus 1 here and plus 1 last. That is 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 5 times. Because 1 raised to 4 1, 1 cube is 1, 1 square is 1, and here plus 1 plus 1.
equals, put the value of x equal to 1 on right hand side also. In each bracket we get 1 minus alpha into 1 minus alpha square, 1 minus alpha cube into 1 minus alpha raised to 4. Now we see that here sum of all these 5 terms is 5. Therefore 1 minus alpha into 1 minus alpha square into 1 minus alpha cube into 1 minus alpha raised to 4 equals 5. Now we can say 1 minus alpha into 1 minus alpha square, 1 minus alpha cube into 1 minus alpha raised to 4 equal to 5, or 5 equal to this much. Hence proved, because we want to prove that this term. So it is completed now. So you can see the roots are related to this term, and it is, and the multiplication of all these terms is 5. So this question is very important and simple. एंड जितना पॉसिबल है इजी से इजी मेथड मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है. इन केस इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट्स स्टूडेंट को है तो दे कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन इन द कमेंट सेक्शन. कोई भी संकोच नहीं करना, निसंकोच पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो. और कोई भी डाउट है तो अपने नेक्स्ट वीडियोज में उसका डाउट अपना देख सकते हो कि यहाँ पर डाउट है, और वो नेक्स्ट वीडियोज में डाउट से और अपलोड हो जाएगा. Sorry. Now see question number 14th. Find all the values of 32 raised to 1 upon 5. Find all the values of 32 whole raised to 1 upon 5 means fifth root. Now see the solution. Since 32 is equal to 32 multiplied by 1, so 32 is easily expressed as 32 into 1, because 1 equal to cos 0 plus I sin 0 as explained in the previous question also. So therefore 32 equals 32 into cos of 0 plus I sin 0. But cos of 0 plus I sin 0 can be expressed as cos 2 pi k plus I sin 2 pi k, or 2k pi plus 2k pi, as you like. So therefore cos 0 plus I sin 0 is cos 2k pi or 2 pi k plus I sin 2 pi k. So it is here now taking fifth root on both sides, that is 32 raised to 1 upon 5, because we want to find the value of 32 raised to 1 upon 5. So taking fifth root, we get here 32 raised to 1 upon 5 equals 32 multiplied by cos 2 pi k plus I sin 2 pi k whole raised to 1 upon 5. Now, it can be written as 32 to the power 1 upon 5, or fifth root of 32. Here, for this bracket, using De Moivre's theorem. So, according to De Moivre's theorem, here cos 2k pi upon 5 plus I sin 2k pi upon 5, where k is constant. And it can be written as now fifth root of 32. Here it is 2 raised to 5 and whole raised to 1 upon 5. That is 2 only. So its value is 2. So 2 into cos 2k pi upon 5 plus I sin 2k pi upon 5. अब देखो इसको हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं. मान लो कि भाई ये क्वेश्चन किसी जनरल टर्म में या लोअर स्टैंडर्ड्स के लिए आता है, जब हम लोग स्कूल लेवल में पढ़ते थे तो ठीक इसकी वैल्यू हमें पूछी जाती, फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 रेज्ड टू 1 अपॉन 5. वहां पर अपना क्वेश्चन क्या होता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 रेज्ड टू 1 अपॉन 5 इन द इंडाइसिस चैप्टर और रेडिकल्स. जहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस आते थे तो वहां पर ये नहीं लिखा होता था कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ 32 रेज्ड टू 1 अपॉन 5. वहां पर सिर्फ इतना ही लिख के आता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 रेज्ड टू 1 अपॉन 5. तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, सिंपल हो गया, बिकॉज 32 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 रेज्ड टू 5 और 2 रेज्ड टू 5 होल रेज्ड टू 1 upon 5. तो अकॉर्डिंग टू इंडाइसिस प्रॉपर्टी 2 रेज्ड टू 5 into 1 upon 5, 5 get cancelled, we get answer 2. But here our question is find all the values of 32 raised to 1 upon 5. तो all the values का मतलब है कि अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हैं वो सभी वैल्यूज फाइंड करनी है, और जो पॉजिटिव हैं उनको तो हम लिख सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यूज है और वो पावर्स उनके जो है फ्रैक्शनल पावर्स है, रेडिकल्स है, तो इसके लिए इन वैल्यूज को हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना पड़ता है. ये रीजन होता है. ये रीजन है कि हमने पहले 1 को कन्वर्ट किया cos 0 प्लस आई साइन 0. अब देखो cos 0 1,
और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो 1 प्लस आई इंटू जीरो दैट इज 1 प्लस जीरो बिकम्स 1। तो ये 1 ही है, ये ब्रैकेट क्या है, 1 है, नथिंग, ये 1 के इक्वल ही है, ये यहां पर दूसरा कुछ वैल्यू नहीं आने वाला। ये 32 इंटू 1 है, तो ये 32 इंटू 1 यहां पर भी है, सेम वैल्यू, बट दैट वैल्यू कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, जिसको हम लोग पोलार फॉर्म बोलते थे। अभी कॉलेज लेवल में क्या था अपना, प्रीवियस स्टैंडर्ड में इसी को हम लोग पोलार फॉर्म में रखते थे, तो अब भी पोलार फॉर्म में, लेकिन उसके साथ कुछ एडिशनल टर्म्स भी है, तो वहां पर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, वहां पर भी हमारे पास एडिशनल टर्म होता था आर, तो आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, हम लोग ऐसा लिखते थे, दैट वन इज पोलार फॉर्म। यहां पर क्या है, 32 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई की प्लस आई साइन 2 पाई की होल रेज टू 1/5, क्योंकि यहां पर हम लोग फिफ्थ रूट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके। तो ये वैल्यू को मान लो कि अगर यहां पर कोई टेंशन है तो एक स्टेप और लिख लेना यहां पर कि 30 ऐसे एज इट इज लिखना, 32 इक्वल टू 32 इंटू कॉस 2 पाई के प्लस आई साइन 2 पाई के, ऐसा भी लिख करके उसके बाद फिफ्थ रूट कर सकते हो। तो जस्ट एक स्टेप यहां पर ज्यादा एंट्री करनी पड़ेगी और कोई यहां पर रीजन नहीं। तो इसको हमने क्या किया, देखो 32 को जब फैक्टराइज करोगे, व्हेन वी फैक्टराइज 32, so we get here 2 into 2 into 2 into 2 5 times, so here it is 2 raised to 5, so 2 raised to 5 whole raised to 5, 1 upon 5 becomes 2। ये तो क्लियर हो गया, बट एडिशनल टर्म्स आर cos ऑफ 2 के पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 2 के पाई अपॉन 5। तो ये हमने यहाँ पर डी मोइवर्स थ्योरम, जब डी मोइवर्स थ्योरम को यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ पर इजिली ये फॉर्मूला आ जाता है। तो आगे अब यहां पर चलते हैं। तो अब इनके जो के वैल्यूज हैं, जैसे पुट के इक्वल टू 0 1 2 3 4, तो ये फॉर्मूला, ये वैल्यूज जब हम यहाँ पर अब 1 बाय 1 पुट करना स्टार्ट करेंगे तो हमें जो इनके रूट्स हैं वो न्यू रूट्स मिलते जाएंगे। नाउ डिस्कस ऑन रूट्स। पुट के इक्वल टू 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4। इन दिस इक्वेशन वी गेट फर्स्ट रूट। अब यहां पर हमें 32 लिखने की जरूरत नहीं है, वी राइट द रूट्स, क्योंकि इनको जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आने वाले हैं, तो यहां पर हमारे टोटल 5 वैल्यूज आने वाले हैं, तो उन वैल्यूज को हम यहां पर एक्सप्रेस करेंगे। तो कंसीडर देम एज x0 x1 x2 x3 x4। when x equal to 0, sorry, when k equal to 0 here, we get x0 means first root equal to 2 multiplied by here 2 into 0 into pi upon 5, that is cos of 0, plus I sin 2 into 0 plus pi upon 5, that is sin 0। तो साइन 0 is 0, that is 0 into I becomes 0, ये cos 0 is 1, तो 2 into 1 becomes 2, पहला रूट अपना 2 आ गया, ठीक है। x1 means put k equal to 1, we get 2 cos 2 pi upon 5, यहां पर ही रखना है, 2 into 1 into pi upon 5 plus I sin 2 into 1 into pi upon 5, so we get here cos 2 pi upon 5 plus I sin 2 pi upon 5, this is x1। देन x2, वैल्यू ऑफ x2, अब यहां पर x2 आ रहा है तो x2 को हम लोग क्या लिखेंगे, पुट k इक्वल टू, यहां पर हमारे पास 2 आता है, तो x2 के लिए 2 इंटू कॉस 2 इंटू 2 इंटू पाई अपान 5, आई साइन 2 इंटू 2 इंटू पाई अपान 5, तो यहां पर हो जाएगा 4 पाई अपान 5, यहां भी 4 पाई अपान 5, सो वी शुड राइट हियर x2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 4 पाई अपान 5 प्लस आई साइन 4 पाई अपान 5। अब ये दो टर्म तो हमारे पास आ गए। अब देखो अभी तक जो यहाँ पर टर्म्स हैं इसमें डिनोमिनेटर है ग्रेटर, 2 पाई अपान 5 4 पाई अपान 5, दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, मींस ये क्वांटिटी अभी 1 से लेस है। अगर हम लोग ऐसा जूम करें 2 अपॉन 5 इज लेस देन 1, 4 अपॉन 5 इज लेस देन 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बोथ हियर आल्सो। तो अब जो कमिंग एंगल्स हैं, जैसे हम लोग x इक्वल टू k इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारा थर्ड रूट आएगा x3 इक्वल टू 2 इंटू cos 6 पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 6 पाई अपॉन 5। तो अब यहां पर हमें बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है कि ये जो यहाँ पर एंगल्स हैं इनके 6 पाई अपॉन 5 और ये 6 पाई अपॉन 5 रेडियन फॉर्मेट, तो एज फार एज पॉसिबल वी शुड कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ 2 पाई अपॉन 5 और 4 पाई अपॉन 5। तो ये जो 6 पाई अपॉन 5 है, अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये इजिली किस में कन्वर्ट हो सकता है और कौन से क्वाड्रेंट में ट्रांसफर हो सकता है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। So it is 2 as it is here। देखो 6 पाई अपॉन 5 कैन बी रिटन एज 2 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 5। अब ये बोलोगे कि हाउ वी नो दैट, स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हाउ वी नो दैट कि 2 पाई माइनस 4 अपॉन 5। अब देखो 5 टू जा 10, 10 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 5, तो एंटायर हो गया 10 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 5, दैट इज 6 पाई अपॉन 5, वही टर्म आता है। तो ये अपने
कॉमन सेंस से समझ के लेना है, अपने अंडरस्टैंडिंग से लेकर के यहाँ पर करना पड़ेगा कि ऐसा एक एंगल अपने को थिंक करना है और वो एंगल इधर 2 पाई प्लस और 2 पाई माइनस में ही कन्वर्ट करोगे। और अगर ये वैल्यूज बहुत छोटे होते हैं तो पाई प्लस और पाई माइनस से दो ही होते हैं, जैसा कि मैं अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इन केस यू हैव एनी डाउट फॉर द अलाइड एंगल्स या जहां पर क्वाड्रेंटल एंगल्स या क्वाड्रेंट्स के बारे में कोई डाउट्स है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो उसको समझने के लिए हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स में, उन वीडियोस में जाकर के वो चैप्टर्स को समझ सकते हो, वीडियो को देख सकते हो। और वो वीडियोस मिलेंगे स्टैंडर्ड 11th जो यहाँ पर पार्ट 1 जिसमें लिखा गया, उसमें जाकर के चेक करोगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री की फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में कोई भी डाउट्स है, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, तो उसको पार्ट 2 में जाकर के चेक करोगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। फिर भी अगर वहां से भी नहीं समझ में आता, यहां से भी नहीं समझ में आता, तो यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड इट अगेन। अब ये तो क्लियर हो गया कि 5 टू जा 10 पाई माइनस 4 पाई 6 पाई अपान 5, यहाँ भी सेम है 2 पाई माइनस 4 पाई अपान 5 मीन्स x3 इक्वल्स 2 इंटू कॉस 2 पाई माइनस 4 पाई अपान 5 प्लस आई साइन 2 पाई माइनस 4 पाई अपान 5। अब इनके जो एक्चुअल फार्मूला है, देखो cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos ऑफ थीटा, तो थीटा यहाँ क्या है 4 अपॉन 5, यहाँ भी थीटा है 4 अपॉन 5। इतना कंफर्म होता है कि 2 पाई या 4 पाई में से एक बनेगा, वो 2 पाई माइनस करके दोनों देख लो, जिसमें 4 पाई अपान 5, जिसमें 6 पाई अपान 5 बनेगा, वी शुड राइट दैट टर्म। तो यहाँ पर थीटा क्या है 4 पाई अपान 5। Therefore x3 इक्वल टू 2 इंटू, अब देखो cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा, तो हो गया cos 4 पाई अपान 5 माइनस आई साइन 2 पाई minus theta is minus sin theta. This is the reason we write here minus, because plus into minus becomes minus. So I sin 4 pi upon 5. Both lies in fourth quadrant. So cos is positive and sin is negative. ये इसकी प्रॉपर्टी है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और sin नेगेटिव होता है। This is the reason we write here cos positive and sin negative. Now we put k इक्वल टू 4 जो कि अपना लास्ट रूट है दिस क्वेश्चन के लिए। तो x4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 मल्टीप्लाइड बाय cos 8 पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 8 पाई अपॉन 5। यहाँ पर हमने k का वैल्यू रख दिया उसी इक्वेशन में जो यहाँ पर ऊपर है, तो वहां पर रखने के बाद हमें मिल गया cos 8 पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 8 पाई अपॉन 5। नाउ 8 पाई अपॉन 5 कैन बी कन्वर्टेड इन 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5। अब फिर से देख लो, ये 4 पाई में या 2 पाई में एक में से कन्वर्ट होगा, तो ये क्लियर है कि 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5 अगर करोगे 5 टू जा 10, 10 पाई माइनस 2 पाई 8 पाई अपॉन 5। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 मल्टीप्लाइड बाय cos 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5। यहाँ भी 5 टू जा 10, 10 पाई माइनस 2 पाई 8 पाई अपॉन 5 ये मिल जाएगा। तो अब ये हमें देखना है कि ये है 2 पाई माइनस थीटा के फॉर्मूला। तो cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, दैट इज cos 2 पाई अपॉन 5, और यहाँ पर sin 2 पाई माइनस थीटा माइनस sin थीटा दैट इज माइनस आई sin 2 पाई अपॉन 5, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन 5 है यहाँ पर। ठीक, जैसा कि भी प्रीवियस टर्म में भी यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन आया हुआ था माइनस। तो देयरफॉर x4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई cos 2 पाई अपॉन 5 माइनस आई साइन 2 पाई अपॉन 5। इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे जो रूट्स हैं वो सिमिलर एंगल में कन्वर्ट हो गए। इन केस मान लो कि हम यहाँ पर इसको किसी भी वे में, मान लो यहाँ हमारा कुछ ऐसा टर्म होता कि जो यहाँ कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यू कैन लीव दैट एंगल, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम कन्वर्ट करें, लेकिन ऐसे केसेस में श्योर कन्वर्ट होता ही होता है, तो यहां पर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ फाइनल आंसर इनके एंट्री कर सकते हैं कि देयरफॉर द रूट्स आर 2। अब यहां देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय cos 2 पाई अपॉन 5 प्लस माइनस आई साइन 2 पाई अपॉन 5। एक तो ये यहां पर है माइनस का, और एक जो ठीक ऊपर यहां पर हमारे पास जो पॉजिटिव रूट आया हुआ था एक यहां पर, ये दोनों रूट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। एक प्लस है और एक यहां पर है माइनस, ये दोनों का आंसर यहाँ पर कंबाइंड में लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई cos 2 पाई अपॉन 5 प्लस माइनस आई साइन 2 पाई अपॉन 5। ये बेनिफिट हुआ हमारा कि दोनों रूट सिमिलर हैं, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। इसी तरह से
नेक्स्ट रूट्स जो आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 4 पाई अपॉन 5 प्लस माइनस आई साइन 4 पाई अपॉन 5। अब यहाँ पर भी ये जो हमारा 4 पाई अपॉन 5 का था ऊपर था पॉजिटिव और यहाँ पर है नेगेटिव, तो यहाँ पर दोनों को कंबाइंड रूट्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देयर आर 5 रूट्स फॉर 32 raised to 1 upon 5, or you can say all the possible values of 32 raised to 1 upon 5 are 2 comma 2 into cos 2 pi upon 5 plus minus I sin 2 pi upon 5 comma 2 into cos 4 pi upon 5 plus minus I sin 4 pi upon 5। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर ही डिस्कस करेंगे। बाकी इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और फिर डिफिकल्ट और डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यूनिवर्सिटी के पेपर्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।